Good evening, students, and welcome again, all of you, to my education channel, The Guru Upanishad English classes. In this video session, I am going to discuss the question and answers of the chapter The School for Sympathy of class 7 of those schools or those students who possess a new leaf book for their literature, Okay, so students, you can find my explanation and comprehension and summary lecture on this chapter, on chapter number 2 of this book. Okay, and now I am going to give you some ideas about how to write answers of this exercise. So directly coming toward the question, first question you can see in your book is, what did the narrator notice on entering the school? What did the narrator notice on entering the school? Narrator जब स्कूल में प्रवेश किया तो उसने क्या नोटिस किया? ठीक है? So I think you all remember, if you have heard the comprehension of this chapter. Okay, when the narrator entered the school, he noticed a little girl who was about 12. He noticed a little girl who was about 12 with a bandage over her eye. Okay, and she was being guided by a little boy of 8. Okay, जब नरेटर ने स्कूल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की जो लगभग 12 वर्ष की रही होगी, ओके, जिसकी आंखों पे पट्टी था, और उसे एक छोटा सा बच्चा 8 वर्ष का वो उसे रास्ता दिखा रहा था. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड मिस बीम टीच इन हर स्कूल? मिस बीम अपने स्कूल में क्या पढ़ाती थी? ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट मिस बीम taught some moral values and life skills. Miss Beam taught some moral values and life skills apart from the traditional subjects. ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के अलावा वो मोरल वैल्यू और जीवन में लड़ने की क्षमता, जीवन को जीने की क्षमता को सिखाया करती थी. She taught children some thoughtfulness like humility, kindness and citizenship. Okay? वो कुछ उच्च विचार बच्चों को सिखाया करती थी, जैसे कि ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और सिटीजनशिप. Along with this, she also made children to learn to survive. She also made children learn to survive in harsh or odd condition. ठीक है, मुश्किल परिस्थितियों में कैसे सरवाइव करना है वो भी सिखाया करती थी. ठीक है, and also to be sympathetical to other. दूसरों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है, दया का भावना रखना है, कंपैशन रखना है, ये भी सिखाया करती थी. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड मिस बीम ट्राई टू सेंसिटाइज हर स्टूडेंट टुवर्ड दोज हु हैड लेस फॉर्च्यून? मिस बीम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को किस प्रकार से जो हीन या कमजोर भाग्य वाले हैं, जो अनलकी है, उनके प्रति, अनलकी यहाँ पे कहने का मतलब कि डिसेबल्ड पीपल, ठीक है, उनके प्रति कैसे संवेदना रखने को सिखाती थी. सो क्या लिखेंगे आंसर में? मिस बीम हैड अ यूनिक वे टू सेंसिटाइज हर स्टूडेंट्स टुवर्ड दोज हु वर लेस फॉर्च्यून. उसके पास बहुत ही एक यूनिक वे था अपने बच्चों को, लेस फॉर्च्यून वाले बच्चों के प्रति सेंसिटाइज
या संवेदनशील बनाने के लिए। मिस बीम हैज a very unique way to sensitize her children toward those who have less fortune. She made each and every child of a school. She made each and every child of a school to leave the whole day as a blind, a lame, a deaf and a maimed or dumb. Okay, instilling it into their course of week. Okay, means वो अपने बच्चों को एक एक बच्चे को हफ्ते भर के कोर्स में एक दिन अंधा, एक दिन गूंगा, एक दिन बहरा, इस प्रकार से अलग अलग डिसेबिलिटी से फेस करवाती थी। ठीक है, उनको उस प्रकार से बनकर पूरे दिन भर जीना होता था। एंड अदर पीपल, अदर स्टूडेंट्स, ओके, वुड हैव टू हेल्प देम, ओके, इन दैट कंडीशन। उस अवस्था में बाकी विद्यार्थियों को इन्हें मदद करना होता था। इन दिस यूनिक वे चिल्ड्रन लर्न टू सर्वाइव इन ऑड कंडीशन, okay, and they also learn to help each other. Okay, moving toward the next question, students. How did scenario at Miss Beam's school affect the narrator? मिस बीम के स्कूल में जो भी दृश्य था उसे देखकर नरेटर कैसे अफेक्टेड हुआ? नरेटर was greatly affected at the scenario at Miss Beam's school. वो बहुत प्रभावित हुआ मिस बीम के स्कूल का दृश्य देखकर। नरेटर was greatly affected at the scenario at Miss Beam's school. Okay, he was completely impressed to see such a unique way. He was completely impressed to see such a unique way of teaching life skills and moral value to the students. वो बहुत ही प्रभावित हुआ इतना यूनिक वे बच्चों को लाइफ स्किल और मोरल वैल्यू सिखाने को देखकर। ओके, ही डिड नॉट वांटेड टू लीव द परमाइसेस, यहाँ तक कि वो जगह छोड़कर जाने को उसका मन नहीं हो रहा था। ही डिड नॉट विश्ड और वांटेड टू लीव द परमाइसेस, बट when he left, he went on his thoughts and sung in rhyme, taking decision that he would help everybody whom he will see in pain. ठीक है, अंत में वो छोड़कर गया तो, लेकिन विचारों में खोया हुआ वो कुछ गुनगुनाने लगा, जिसमें वो ये निर्णय कर रहा था कि जब किसी को भी वो दुख में देखेगा तो जरूर मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F, स्टूडेंट्स लुक इनटू योर बुक्स ऑन द पेज। इमेजिन इफ यू वर स्टडीइंग इन मिस बीम्स स्कूल, which day do you think was the most difficult? Which one was the easiest? Why do you think so? Suppose that यदि आप मिस बीम के स्कूल के स्टूडेंट होते तो कौन सा दिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता और कौन सा सबसे ज़्यादा आसान होता, और ऐसा क्यों? Why like this? So again, ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके अपने अपने मन के अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग देने वाला क्वेश्चन है। You shall try your own ideas in this question, but as per me, I will tell you a hint or sample answer. Okay, according to me, the blind day was the toughest one. The blind day was the toughest one. Okay, it was the most difficult. या यूं कहें, इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं कि या इसमें एक
बैंडेड गर्ल है जिससे नरेटर बात करता है, ठीक है, तो हम उसने भी ब्लाइंड डे को टफ माना है तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आई सपोर्ट दैट बैंडेड गर्ल हु सेज दैट ब्लाइंड डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ओके। एंड being a maimed day or being a lame day, according to me, being a lame day was easiest, okay, because being lame I would have been given a stretch to walk with, okay। मतलब कि यदि मैं लंगड़ा होता तो मुझे चलने के लिए बैसाखी मिलता तो इजीली मैं काम चला सकता था। दिक्कत होती, तकलीफ होती चलने में, बट मैं काम चला सकता था, क्रच के सहारे में चला सकता था काम, ठीक है। लेकिन जब आप अंधे हैं सो आपको पूरी तरीके से दूसरों पे निर्भर है, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग, यू डोंट नो इन विच डायरेक्शन टू गो, वेयर आर योर थिंग्स, वेयर आर योर क्लोथ्स, एवरीथिंग यू हैव टू बी dependent on others। But as being a lame, we will have been provided a crutch to walk with, and that would have been a little easier, ठीक है। वैसे सारे ही जो है अपने आप में बहुत मुश्किल है, बट कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। Moving toward the next question, students, fill in the table given below which highlights the difference between a normal school and Miss Beam schools, okay। Come on to the table on the next page। अगले पेज में नेक्स्ट टेबल है, उसको हमें फिल अप करना है by comparing any normal school with Miss Beam school। फर्स्ट सेक्शन जो है Miss Beam school का एम्प्टी है, एंड इन ऑर्डिनरी स्कूल का क्या लिखा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर टॉट, ओके। तो मिस बीम स्कूल में क्या होगा, along with different subjects, moral value and many life skills are taught, okay। Along with different subjects, moral value and many life skills are taught, okay। Option number B, ordinary school का क्या है, only information is given to students, okay। मिस बीम स्कूल में क्या होगा, informations are brought into practice, इंफॉर्मेशन आर ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस, मीन सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया नहीं जाता बल्कि उसको पालन करवाया जाता है, उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट किया जाता है। मिस बीम स्कूल के कॉलम में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, मेथड ऑफ टीचिंग इज अनकन्वेंशनल लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ओके। तो इसके अपोजिट ऑर्डिनरी स्कूल में क्या होगा, मेथड ऑफ टीचिंग इज कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, ओके। कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टीचिंग बुकिश लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी ऑर्डिनरी स्कूल का है, सिंपैथी एंड काइंडनेस आर नेसेसरी, ओके। बट ऑप्शन नंबर डी में मिस बीम स्कूल का होगा, सिंपैथी एंड काइंडनेस आर प्रैक्टिस इनटू द लाइफ, जीवन में उसका उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ई में है, चिल्ड्रन लर्न अबाउट लाइफ एंड इट्स मेनी प्रॉब्लम, ओके। ऑर्डिनरी स्कूल के ऑप्शन ई में होगा, चिल्ड्रन लर्न अबाउट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड बुकिश लैंग्वेज एक्सेट्रा, ठीक है, बुकिश नॉलेज। ऑप्शन नंबर एफ, स्पेशल डेज फॉर एवरी डिसेबिलिटी, ओके। डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग स्पेशल डे था, बट इन ऑर्डिनरी स्कूल whole day is divided into many routines of different subjects, many periods of different subjects, okay। Children do not teach, ordinary school में भी they are taught not to teach, okay, and perhaps this would be same। मुझे नहीं लगता कि बच्चे चीट करते होंगे। H मिसेस बीम स्कूल का ऑप्शन खाली है, बट ऑर्डिनरी स्कूल का ऑप्शन है, पेरेंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू लर्न ट्रेडिशनल सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी ये सब सीखें, बट
in Mrs. Beam schools, parents were also supportive to Mrs. Beam to teach their students real life experiences, life skills and moral values. Okay, now come to the second exercise, that is MCQ question. And A number, the girl had her eyes bandaged because she was to experience blindness. जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो आंसर होगा. Miss Beam's school taught thoughtfulness. Second option is the answer. Next question. What painted the author about the school? What pained the author about the school? Excuse me. Children did not seem healthy. Third will be the answer. After spending some time at the school, the author realized that he had become more thoughtful. Third would be the answer. स्कूल में कुछ समय बिताने के बाद ऑथर को ऐसा लगा कि वो भी उन बच्चों की तरह विचारशील हो गया है.